Hello guys, welcome back to literature classes. This is Avilasha. Now again we are going to read a topic that is punctuation. So guys, what is punctuation? Actually punctuations are marks. Marks which are used in the writing, printing or typing to highlight something, to show the statements, like we use commas, colon. If we want to indicate some question mark, so we use after the statement question mark, or colon, semicolon, dashes, hyphen. So uh, I am going to discuss these things. I am going to read these things in detail. So guys, let's move on the detailed study of punctuation. So guys, to know punctuation, first of all we need to know what is the definition of punctuation or what is the punctuation. Because if we are going to write or indicate anything, we are using punctuation marks. So first we need to know what is punctuation and where it can be used. So punctuations or interpunction, means punctuation is also called interpunction, is a use of spacing, conventional signs and certain typographical devices as aids to the understanding and correct reading of written text, whether read silently or aloud. Means punctuations are also called interpunctuation, and they are used to give a space, or we use some conventional signs or some to understand correct reading of written text, whether read silently or aloud. When we read something, we take pause. When we read something and we state, like we are asking question. So there are many things we use. So that are the punctuations to indicate something, to indicate some statements, some proverbs, etc etc. सो पंक्चुएशन क्या होता है? पंक्चुएशन में कुछ साइंस होते हैं, कुछ कन्वेंशनल साइंस होते हैं जिनको कि यूज़ किया जाता है किस लिए? स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट को समझने के लिए, उसमें करेक्ट रीडिंग या रिटन टेक्स्ट जो होता है. कभी कभी हम पॉज का यूज़ करते हैं, तो हम जब बोलते हैं तो थोड़ा सा रुकते हैं. पॉज मीन्स कॉमा. सेमीकोलन का यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं. तो ये सारी चीज़ें क्या होते हैं? हमारे पंक्चुएशंस होते हैं. और a mark such as a full stop, comma or a question mark used in writing to separate sentences and their elements and to clarify meaning. A mark such as full stop, एक मार्क कैसा हो? जैसे कि फुल स्टॉप है, कॉमा है, क्वेश्चन मार्क है. ये सारी चीज़ें राइटिंग में, टेक्स्ट में या टाइपिंग में यूज़ की जाती है टू सेपरेट सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए और उनके एलिमेंट्स को, एंड टू क्लैरिफाई मीनिंग. और उससे क्या होता है? मीनिंग भी क्लैरिफाई होता है. अगर क्वेश्चन मार्क दिख जाता है तो हम दूर से ही समझ जाते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, या इस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ओके. कॉमा है, तुरंत हम एक सेकंड रुक करके सेंटेंस को पढ़ते हैं या लिखते हैं. कई सारी चीज़ें एक साथ बतानी होती है तो हम कॉमास का यूज़ करते हैं. सो अगर कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग थिंग है तो हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स का यूज़ करते हैं. उसका यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं? व्हेन वी यूज़ पॉज, व्हेन वी यूज़ कॉमास, exclamation marks, inverted commas or anything else. So see the things with examples also. First guys, we need to know how many types of punctuations are there. So punctuation marks are period. Period means full stop. Period is also called full stop, means full stop को हम period भी कहते हैं. Question mark, you know very well. Then exclamation point, this, comma, semicolon, comma, then dot, then comma. So this is semicolon, colon, dash, hyphen, apostrophe, question marks, ellipsis. So there are several types of punctuations. Now read one by one. Okay, so what is full stop or period? When we end some sentences, that time we put a dot. So that is full stop. It is used to end a sentence or used for abbreviations. Means when we write a sentence and going to end the sentence, so that time we use full stop. Like
he has completed his work. Now the sentence is finished, so we use full stop. If we want to write something and we want to add, or we should write in short form or abbreviations, means when we say Bachelor of Arts, that time we write BA, Bachelor of Arts, MA, Master of Arts. So we use M capital, then dot, then A, then dot. But we can't write these letters in small letters. Why? Because it is the rule that when we write these in abbreviations, that time we write in the capital letters. Okay, BA, MA, TAT, CTET, BBA, MBA, Master of Business Administration. So like these, so these are abbreviations we are using for the words. Okay, after that, if we are using E dot G dot, if we are writing E dot G dot, E dot G dot, you know very well that it is written for example. It is written as for example. That time we say E dot G dot. Okay, हम क्या लिखते हैं इसमें? E dot G dot लिख देते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? एग्जाम्पलिक मतलब फॉर एग्जाम्पल. जब हम कोई एग्जाम्पल देते हैं तो E dot G dot लिख करके कोई एग्जाम्पल लिखना शुरू कर देते हैं. सो क्या होता है? वो एग्जाम्पलिक रेशिया होता है उसका मतलब, एंड इसको क्या कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल. देन I dot E dot, ये क्या होता है? इसका मतलब होता है दैट इज. I dot E dot मीन्स दैट इज, बट इसका फुल फॉर्म क्या है? इडेस्ट. ओके, इडेस्ट इसका फुल फॉर्म है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? दैट इज. दैट इज का मतलब है कि अब हम कुछ और कहना चाहते हैं, कुछ स्टेटमेंट लिख लें, उसके बाद कहते हैं दैट इज. जैसे मैंने कहा, आई एम गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक, दैट इज पंक्चुएशन. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक, फिर दैट इज पंक्चुएशन. दैट इज का मतलब है आई डॉट ई डॉट. देन वी राइट ETC, दैट इज मीन्स एट्सेट्रा. एट्सेट्रा को हम लोग कैसे लिखते हैं? मैंगो, बनाना, एप्पल, एट्सेट्रा. सो दीज आर फ्रूट्स. सो एट्सेट्रा मीन्स और भी बहुत सारी चीज़ें, आदि आदि. सो हमारा जो फुल स्टॉप है या पीरियड है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है? एक तो सेंटेंस को एंड करने के लिए यूज़ होता है, दूसरा एब्रीविएशंस के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड क्वेश्चन मार्क. All of you know very well where we use question mark when we want to indicate some interrogative sentence. When we want to write some interrogative sentence, that time we write interrogative sentence. After that, we use question mark to indicate that it is interrogative. They are asking the question. Next, exclamation mark. So exclamation mark is used to express a sudden feelings or add emphasis. एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किस लिए होता है? सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, कुछ एम्फेसिस को ऐड करने के लिए, या अपने किसी जॉय, सॉरो फीलिंग्स, यही सारी सडन फीलिंग्स होती हैं, इन्हीं को हम एक्सप्रेस करते हैं. कैसे एक्सप्रेस करते हैं? लाइक हम बोल देते हैं, ओ वाओ वी वन द मैच. ओ वाओ वी वन द मैच. वाओ, आफ्टर वाओ वी यूज एक्सक्लेमेशन मार्क्स. लाइक सी द एग्जाम्पल, alas, I am ruined. So this is a sudden feelings. How sudden feeling? Alas, I am ruined. मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया. Alas, दुख के साथ वो कह रहा है, तो क्या दुख का जताया, उसको लिखा, देन एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगा दिया, जिससे क्या पता चल रहा है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. ब्रावो, यू हैव डन वेल. ब्रावो, यू हैव डन वेल. ब्रावो के बाद हमने क्या लगाया? एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाया. कभी कभी इस एक्सक्लेमेशन पॉइंट का यूज़ एंड में भी किया जाता है. लाइक व्हाट अ फूल आई एम. व्हाट अ फूल आई एम. सो यहाँ हम लोगों ने क्या यूज़ किया? एक्सक्लेमेशन पॉइंट का यूज़ किया एंड में. सो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें स्टार्टिंग में, और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें एंड में एक्सक्लेमेशन पॉइंट का यूज़ किया जाता है. इस तरह के जब स्टेटमेंट्स आएंगे, सेंटेंसेस आएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? उस वर्ड के बाद, एक्सक्लेमेशन वर्ड के बाद में उसका यूज़ कर देंगे. आफ्टर दैट, अगर व्हाट अ फूल आई एम, हाउ क्लेवर आई एम, सो क्या है यहाँ पे? लास्ट में यूज़ हो रहा है. सो ये क्या है? व्हाट अ फूल आई एम, मतलब कितना मूर्ख हूँ मैं, कितना मूर्ख हूँ मैं. यहाँ पे क्या हो रहा है? एंड में आ रहा है, क्योंकि एम्फेसिस कहाँ पे है? एंड में है. आई एम. ओके, देन
comma. Comma is used to show separation of ideas and it is also used to write numbers, dates and to show several things. Means कॉमा का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें पॉज लेना होता है, रुकना होता है, या बहुत सारी और भी चीज़ें लिखनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं तो उनको हम कॉमा कॉमा करके काफ़ी सारी चीज़ें लिखते चले जाते हैं. एंड टू राइट नंबर्स या डेट्स लिखते हैं तब भी हमें क्या होता है? कॉमा का यूज़ करना होता है. बहुत सारी डेट्स और नंबर्स लिखते हैं अगर. और क्या होता है ये किसके लिए? शो अ सेपरेशन ऑफ आइडियाज़ को, कि सेपरेशन को भी शो करता है ये. लाइक अब देखिए एग्जाम्पल्स देखिए. मीरा, रेखा एंड नेहा आर वॉचिंग मूवी. मीन्स दीज थ्री आर वॉचिंग मूवी एंड दे more than one word, more than one name, we are using comma or pause here. So Meera, comma, Rekha and Neha are watching movie. This is the end. So we are, there we are using full stop, and after three names, after first name we are using comma. Meera, comma, Rekha and Neha are watching. So यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया? comma का यूज़ किया. Sometimes we write some phrasal verbs, phrase or to say something to someone. That time we use comma for the phrase. Alexander the Great. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अलेक्जेंडर के बाद क्या कर रहे हैं? द ग्रेट कॉमा लगा दिया अलेक्जेंडर के बाद में. ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में कुछ कहना है स्टेटमेंट. सो उसके पहले अलेक्जेंडर, चूँकि इसका फ्रेज है, ये इसके बारे में इसके लिए बोला जा रहा है तो इसलिए कॉमा लगा दिया हमने. अगर वी हैव बॉट सो मैनी थिंग्स एंड देन वी हैव टेकन लंच. अब हमने क्या किया? दो स्टेटमेंट्स को एक ही साथ जोड़ा है, बट हम यहाँ पे किसी एक कॉमा का यूज़ कर रहे हैं. तो हम कॉमा का यूज़ यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी आर राइटिंग टू सेंटेंसेस टुगेदर एंड वी वांट टू टेक अ पॉज हियर. पॉज लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दो स्टेटमेंट एक साथ हैं, हम एक साथ कंटिन्यू नहीं लिख सकते, ना ही बोल सकते हैं. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कॉमा का यूज़ कर देंगे. आई कैन प्ले फुटबॉल, क्रिकेट एंड हॉकी. अब ये क्या है? आई कैन प्ले फुटबॉल, क्रिकेट एंड हॉकी. कई सारे गेम्स की बात हो रही है एक साथ में, तो हमने क्या किया? उसको कॉमा से सेपरेट कर दिया. आई कैन प्ले फुटबॉल, क्रिकेट एंड हॉकी. अब हम क्या है? कुछ फ्रेजेस होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं, उसके पहले हम क्या करते हैं? उसको लगा करके कॉमा लिखते हैं और उसके बाद में स्टेटमेंट लिखते हैं. लाइक अनफॉर्चुनेटली we lost the match. Luckily, I got the prize. Finally, we have done this. So, unfortunately के बाद कॉमा लगाया, फिर पूरा स्टेटमेंट लिख दिया. Luckily के बाद कॉमा लगाया, फिर पूरा स्टेटमेंट लिख दिया. So, ऐसे भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके बाद में कॉमा लगा करके हम इन्हें यूज़ करते हैं. आफ्टर दैट सेमीकोलन का यूज़ कहाँ होता है? सेमीकोलन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर पॉज. शी कैन सिंग, डांस एट्सेट्रा बट शी कैन नॉट स्पीक गुड इंग्लिश. अब देखिए सेमीकोलन का यूज़ क्यों होता है? सेमीकोलन का यूज़ पॉज के लिए होता है, टू सेंटेंसेस को एक साथ लिखने के लिए होता है. जैसे कि दो स्टेटमेंट जो एक ही चीज़ थोड़ा सा डिफरेंस में बताते हैं. शी कैन सिंग, डांस एट्सेट्रा. अब क्या होता है? सेमीकोलन का यूज़ कहाँ कहाँ और भी होता है. जैसे कि हमारे पास एक से अधिक कॉमाज हो रहे हैं और उसके बाद में स्टेटमेंट भी चेंज हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? सेमीकोलन का यूज़ करते हैं. शी कैन सिंग, कॉमा, डांस एट्सेट्रा. वे गा सकती है, नाच सकती है और भी बहुत सी चीज़ें कर सकती है. बट अब यहाँ पे खुद थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ हमने बताई, तो हमने क्या किया? यहाँ पे डॉट कॉमा, दैट मीन्स सेमीकोलन का यूज़ किया. बट शी कैन नॉट स्पीक गुड इंग्लिश. लेकिन इसका मतलब ये कि थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ बताई और एक ही स्टेटमेंट में बताया, साथ में बहुत सारे कॉमास का यूज़ हो रहा है, तो हमने क्या किया? काफ़ी सारे कॉमास के साथ में की वजह से हमने क्या किया? सेमीकोलन का यूज़ किया दूसरे स्टेटमेंट को बताने के लिए. ही इज़ अ स्पीकर, शी राइटर. मीनिंग इज़ दैट अब हम कुछ और भी बताना चाह रहे हैं. ही इज़ अ स्पीकर, वो एक स्पीकर है, शी राइटर, जबकि वो क्या है? एक राइटर है. तो हमने क्या किया? शी को सेपरेट किया कॉमा से और सेमीकोलन क्यों लगाया? दो स्टेटमेंट्स को एक साथ लिखने के लिए और उसको बीच से सेपरेट करने के लिए. मतलब दो चीज़ों को एक साथ समझना भी है, लिखना भी है, बट क्या करना है? थोड़ा सा सेपरेशन देना है, तो हमने क्या किया? सेमीकोलन का यूज़ किया. आफ्टर दैट कोलन. व्हाट इज कोलन? कोलन is used to write a quotation
to give a list, to express time period, or to give an explanation, examples or series. मीनिंग इज दैट कुछ हमें लिस्ट बतानी होती है कि हम दीज आर गिवन बिलो, फिर हम क्या करते हैं डॉट लगाते हैं, फिर वो चीज़ों को बताते हैं. कोटेशंस लिखते हैं तो क्या करते हैं डॉट लगा देते हैं, फिर उसका कोटेशन लिख देते हैं. कुछ एक्सप्लेनेशन देना होता है कि आई एम एक्सप्लेनिंग दीज थिंग्स इन दिस पैराग्राफ, दैट टाइम वी यूज कोलन. ठीक है. लाइक माई टीचर सेज कोलन लगाया, मेरी टीचर ने क्या कहा, स्पीक द ट्रूथ. इन्वर्टेड कॉमास में इसको क्लोज कर दिया, लेकिन क्या पहले हमें कोलन का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि किसी का स्टेटमेंट है. शी बॉट पेंसिल, पेन, बुक्स एंड नोटबुक. की क्या सीरीज बता रहे हैं, कुछ लिस्ट बता रहे हैं, तो हमने क्या किया इसको कोलन लगा करके और उसके बाद में वो लिस्ट दे दी. देन वेयर वी यूज डैश. सो डैश इज यूज टू सेपरेट वर्ड्स इनटू स्टेटमेंट. स्टेटमेंट्स में वर्ड को क्या करना होता है, सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है डैश का. इट इज़ यूज टू राइट डेट्स एंड नंबर्स. डेट्स और नंबर्स का भी को भी लिखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. कैसे, सी इन द एग्जाम्पल डेट्स, जैसे डेट्स या नंबर्स लिख रहे हैं तो क्या करते हैं 2000 to 2020. जब हम बोलते हैं 2000 to 2020 तो यहाँ पे हम 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डैश का यूज़ करेंगे. डैश का यूज़ करने के बाद में ये क्या हो जाएगा, लिख जाएगा 10th जून टू 15th जून. 10th जून टू 15th जून को लिखने के लिए इसको थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया, डैश का यूज़ कर दिया गया. बट जब हमें डैश का यूज़ करना होता है, हमारे दोनों वर्ड्स के बीच में क्या है, स्पेस है. जून 15th के दोनों के बीच में क्या है, थोड़ा सा स्पेस है. ये टाइपिंग में भी, राइटिंग में भी और टेक्स्ट को प्रिंट करने के में भी ध्यान रखा जाता है कि हमें क्या करना है, प्रिंट डैश का यूज़ करना होता है. डैश का यूज़ कैसे, विद स्पेस. शी टोल्ड हिम हर स्टेटमेंट नो. मीन उसने अपना स्टेटमेंट बताया कि नहीं, जो भी उसने पूछा है उसके बारे में उसने नेगेटिव स्टेटमेंट दिया है. तो हमने क्या किया, थोड़ा सा स्पेस दिया, तब हमने डैश लगाया, देन फिर से स्पेस दिया, देन नो लिखा. आफ्टर दैट देन क्या है, हाइफन. हाइफन का यूज़ कहाँ, हाइफन थोड़ा सा स्मॉल डैश होता है और डैश थोड़ा सा बड़ा सा साइन होता है. इज़ यूज टू जॉइन 2 or more वर्ड्स टुगेदर इनटू अ कंपाउंड टर्म. एक कंपाउंड टर्म को एक साथ जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं. थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक ही कंपाउंड टर्म बनाने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, हाइफन का यूज़ करना होता है. ब्रदर इन लॉ. अब एक साथ बोलना है, एक साथ लिखना भी है, और साथ में हाइफन क्यों यूज़ कर रहे हैं कि उसको थोड़ा सा सेपरेट करना है. ब्रदर इन लॉ. अब यहाँ पे हमें स्पेस नहीं देना है, एकदम जोड़ के लिखना है. ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, थोड़ा सा मैंने दूर लिख दिया, बट इसको क्या करना है, एकदम साथ में लिखना है. लाइक मदर इन लॉ. ओके, इस तरह से. वेल बिहेव्ड, वेल नोन मीन्स कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो एक साथ आते हैं, बट उसमें आपने देखा होगा कि डैश का यूज़ होता है. सो वो डैश नहीं होता है, वो क्या होता है, हाइफन होता है. हाइफन का यूज़ कहाँ पे होता है, मीन्स हाइफन का यूज़ तब होता है जब हमें क्या होता है, स्पेस नहीं देना होता है, 2 वर्ड्स को एक साथ ज्वाइन करना होता है. आफ्टर दैट एपिस्ट्रॉफी. एपिस्ट्रॉफी इज़ यूज टू शो पोजीशन एंड टू राइट कॉन्ट्रैक्शंस और पोजीशंस को शो करने के लिए हम एपिस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं. लाइक मोहन्स, मीराज स्टडी बुक, माई ब्रदर्स वॉच. मीनिंग दैट मोहन्स मीन्स ये पोजीशन शो कर रहा है. पोजीशन कैसा, कुछ है जो कि मोहन से बिलोंग करता है. मीराज स्टडी बुक, मीरा की स्टडी बुक है ये. माई ब्रदर्स वॉच, मेरे ब्रदर की वॉच है. सो ये क्या है, पोजीशन शो कर रहा है. आफ्टर दैट डोंट, डिडंट, हैवंट, वॉजंट, वॉरंट, आई हैव, यू आर. सो ये दीज आर कॉन्ट्रैक्शंस. एपिस्ट्रॉफी का यूज़ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस शो करने के लिए होता है. डू नॉट को हम कैसे लिखते हैं, डोंट लिखते हैं. सो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ हुआ है. कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ क्यों हुआ है, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, शॉर्ट में लिखना है. डू नॉट को हमने क्या किया, डोंट कर दिया, डिडंट कर दिया. और बोल भी सकते हैं डोंट, डू नॉट को डोंट, डिड नॉट, डिडंट, हैव नॉट, हैवंट, वॉज नॉट, वॉजंट, लाइक दिस. सो देन कोटेशन मार्क्स. Quotation marks is also called as speech marks or inverted commas. They are also used as single inverted commas and double inverted commas. So we use these quotation marks to write some statements, to write for someone. Like
She said, can you go to Delhi? Can you go to Delhi? It is the statement of she. She said. We use these quotation marks to show we use these quotation marks to write some statement of someone. She said, can you go to Delhi? मतलब ये किसी का स्टेटमेंट है और इसको नरेशन में भी ये स्पीच मार्क्स का यूज़ किया जाता है, कोटेशन मार्क्स का यूज़ किया जाता है. डोंट टॉक टू मच. दिस इज ऑल्सो अ स्टेटमेंट. सेड नेहा. बट यहाँ पे क्या है, पहले कोटेशन मार्क का यूज़ किया गया है. मतलब क्या है कि इस स्टेटमेंट को पहले लिख दिया गया है, बट क्या है, कोटेशन मार्क यहाँ भी यूज़ होगा. आफ्टर दैट she asked, have you heard the word punctuation? Meaning is that I want to say कि when we write some statements and within a statement there are some word or there are some statement and we want to highlight that or we want to indicate with some commas or we want to show that this is some different things we are going to discuss, that time we need to add this single inverted comma. Single inverted comma कैसे होता है, ये सिंगल इन्वर्ट कॉमा हो गया. ठीक है, तो शी आस्क्ड हैव यू हर्ड द वर्ड, ये एक स्पेशलाइज वर्ड की बात कर रहा है, तो यहाँ पे इसको हमने क्या किया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के साथ में इसको क्लोज कर दिया. राम टोल्ड हिज फादर, आई सॉ पंकज एट द गार्डन एंड ही सेड टू मी, विनय हैज़ बीटन हिम एंड आई बिलीव्ड हिम. मीनिंग इज दैट यहाँ पे भी क्या होता है, एक स्टेटमेंट के अंदर एक स्टेटमेंट है या कोटेशन के अंदर एक कोटेशन है, तब हमें क्या करना है, एक को डबल इन्वर्टेड कॉमास के साथ में यूज़ कर देंगे, दूसरे को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के यूज़ कर देंगे. जो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट ज़्यादा होगा उसको डबल इन्वर्टेड कॉमास में. आई सॉ पंकज एट गार्डन एंड ही सेड टू मी, विनय हैज़ बीटन हिम. ठीक है, सो ये क्या है, स्टेटमेंट विद इन ए स्टेटमेंट है, तो हमने क्या किया, इसको एक को डबल इन्वर्टेड कॉमा में, दूसरे को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दिया. आफ्टर दैट एलिप्सिस. व्हाट इज एलिप्सिस? व्हेन वी वांट टू ओमिट समथिंग, देखिए, इज यूज, एलिप्सिस इज यूज टू ओमिट वर्ड्स और लेटर्स और नंबर्स इन राइटिंग और प्रिंटिंग. राइटिंग या प्रिंटिंग में क्या करते हैं, जब हम कुछ वर्ड्स को या कुछ स्टेटमेंट्स को या कोई ऐसी बात है जो बहुत ज़्यादा लंबी है, कभी कभी हम किसी पोएम को कोट कर देते हैं, किसी स्टेटमेंट को कोट कर देते हैं, किसी फ्रेज़ को कोट कर देते हैं, अगर बहुत लंबा है तो हम क्या कर देते हैं, उसमें 3 डॉट्स का यूज़ करके उसको वहीं से छोड़ देते हैं, थोड़ा सा लिख करके 3 डॉट्स लगा दिया और छोड़ दिया. सो वो क्या होता है, एलिप्सिस होता है. लाइक सौम्या's टीचर स्टार्टेड काउंटिंग द स्टूडेंट्स 1 2 3 4. मीन्स सौम्या टीचर ने कहा, स्टार्ट किया काउंटिंग करना स्टूडेंट्स की, कहाँ से, 1 2 3 4 टिल 100. कहाँ तक, 100 तक काउंट किया, 1 2 3 4. अब हम 5 6 से पूरा 100 तो काउंट नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, तो हमने क्या किया, डॉट लगा दिया, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अंडरस्टूड है. एंड देन अगेन शी हैज़ रिपीटेड इट. और उसके बाद में अगेन उसने इसी चीज़ को रिपीट किया. सो हमने क्या किया, इसको 3 डॉट से इंडिकेट कर दिया गया, क्योंकि ये अंडरस्टूड है और इसको सब समझ सकते हैं और ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. तो इसी तरह से इलिप्सिस का यूज़ कहाँ पे होता है, जब हम किसी चीज़ को, किसी वर्ड को, किसी लेटर को या किसी स्टेटमेंट को लिख करके उसको थोड़ा लिखना चाहते हैं और बाकी ओमिट कर देते हैं, ताकि वो, क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है. सो गाइज़, इस तरह से ये पंक्चुएशन मार्क्स का यूज़ किया जाता है. आई होप आपको समझ आया होगा पूरा ये वीडियो. अगर समझ आया है, अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरीज है, सो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई ट्राई माई बेस्ट to remove your problems. That's it for this video. See you soon in the next video. Till then, keep studying and have fun with literature. Thank you.